হয়তো হয়তো তো বাচ্চা তো হয়তো চা বাগানের অন্তর্গত 7টি ফাঁড়ি বাগানের যারা শ্রমিক মা বোনেরা কার্যকর্তা বন্ধুগণ, আজ আপনাদের ন্যায্য দাবি নিয়ে যে ধর্নায় আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন, এই ধর্না সকাল থেকে চলছে। একবার আপনারা বলবেন শ্রমিক ঐক্য, শ্রমিক ঐক্য, শ্রমিক ঐক্য। আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যে আপনারা যদিও বসার জন্য চেয়ার নাই, আপনারা নিজে নিজে জায়গায় জন্য বসে গেলে আমাদের এখানে কাছাড় জেলার জেলা উপায়ুক্ত মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন এবং সিনিয়র পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন। তো ওনারা যে কথাগুলো বলবেন আপনারা ভালোভাবে ওনাদেরকে দেখতে পারবেন এবং শুনতে পারবেন। সেই জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করছি যে আপনারা যে যেখানে আছেন সেখানে বসে পড়ুন এবং আপনাদের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা হওয়ার পর আপনাদের সঙ্গে ডিসি সাহেব আলাপ আলোচনা করবেন আর তারপর সমাধানে আমাদেরকে আজকে যেতে হবে। আজ সকাল থেকে আমরা এখানে রাস্তা বন্ধ করে আমাদের দাবি, আমাদের প্রতিবাদ জানানোর জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি এবং অনেক রকমের মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে আজকে আমরা সমাধানের জন্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু আপনাদের বাগানের শ্রমিকদের একটাই কথা ছিল যে আমরা বারবার এই দাবি নিয়ে কাগজ লেখা হয়েছে, চুক্তি হয়েছে, আর প্রত্যেকটা চুক্তি বিফল হয়েছে। সেই জন্য বিগত দিনে যার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল তাদের উপরে আমাদের বিশ্বাস সরে গেছে, এই বলেছে নাই আপনারা সবাই? তো এই জন্য আপনারা বলেছেন যে যদি এখানে ডিসি স্যার না আসেন আমরা আর কারোর উপরে বিশ্বাস করি না। আজকে সকাল থেকে যখন আপনারা ধর্নায় বসেছেন তখন থেকেই আমাদের যিনি মন্ত্রী লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক উনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আলাপ করে চলছেন যে ধর্নাটা শান্তি শৃঙ্খলা ভাবে যাতে হোক, পুলিশ যাতে কারো উপরে লাঠিচার্জ না করো, এটা শ্রমিকদের দাবি। এই জন্য শ্রমিকরা বিনা খেয়ে থাকতে পারবে না, কাজ করতে হলে খেয়ে কাজ করতে হবে। সেজন্য যেহেতু শ্রমিকদের দাবি, সেই দাবি ওরা দেখাতে পারে, ওদের অধিকার আছে। এই জন্য মন্ত্রী বলেছেন যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে বলেছেন যে আপনারা লাঠিচার্জ করবেন না, ওরা রাস্তা বন্ধ করেছে, ওরা দাবি ধর্ণা দিতে থাকুক। আপনারা যখন বললেন যে আপনারা অন্য কারো কথা আলাপ মানছেন না, তখন মন্ত্রী লেবার মিনিস্টারের সঙ্গে আলাপ করেছেন, কৌশিক রায় উনি লেবার মিনিস্টারের সঙ্গে আলাপ করেছেন, উনি ডিসি স্যারের সঙ্গে আলাপ করেছেন, উনি এসপি স্যারের সঙ্গে আলাপ করেছেন এবং বলেছেন যে কোনো ভাবে আজকে এর সমাধানটা বের করতে হবে। আর যেহেতু আমাদের সরকারের উপর বিশ্বাস আছে, ডিসি স্যারের উপর বিশ্বাস আছে, সেজন্য আমরা আজকে ডিসি স্যারের কথা শুনবো। শোনার পর আমাদেরকে ডিসি স্যার যে ব্যবস্থা দিচ্ছেন সেই ব্যবস্থাটা আমরা মেনে নেব, যাতে পালরবন চা বাগানের অন্তর্গত যে 5টা ফাঁড়ি বাগান আছে সেই 5টা ফাঁড়ি বাগানে কোনো মা বোনদের শ্রমিকদের আজকে থেকে যাতে কোনো হয়রানি ভোগ করতে না হয়। ঠিক আছে আমার কথাটা? তো আমি এখন ডিসি স্যার মহাশয়কে, কাছাড় জেলা উপাयुक्त श्री मृदुल यादव महाशय के उन्हें वक्तव्य रखार जন্য अनुरोध करब। सर्किल ऑफिसर, एडीसी, एसएसपी, यूनियन और यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सवेरे से हम अलग अलग लोगों के संपर्क में हैं। सवेरे 12 बजे मुझे एसएसपी साहब का कॉल आया कि इस तरह का कुछ रोड ब्लॉक हुआ है। उसके बाद सर्किल ऑफिसर आपके समक्ष प्रस्तुत होकर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है उसके साथ आपके यहाँ प्रेजेंट था। हमने एडीसी को भी भेजा, आप सबके रिप्रेजेंटेटिव के सामने हमने जो उनके मैनेजर हैं और उनके जो ओनर है उनसे बात भी किया और उनके जो आश्वासन के हिसाब से उन्होंने जो आपके सामने रखा है कि आज शाम तक राशन और सोमवार तक जो आपका वेजेस है पिछले सप्ताह का वो दे दिया जाएगा और इस सप्ताह का जो वेजेस है वो आने वाले फ्राइडे को दिया जाएगा। इसका उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। और साथ ही साथ हम लोग जैसे बताया हमारे संजय ठाकुर महोदय ने कि
लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति यहाँ उपस्थित हो रही है। आप अगर आगे जाके देखेंगे कि लगभग 2 किलोमीटर का आगे का जाम, 2 किलोमीटर का पीछे का जाम लगा हुआ है, किसी के अगेंस्ट हमने ना कोई लाठीचार्ज, ना कोई किसी भी तरह का हमने इस तरह का अभी तक उपयोग नहीं किया है। लेकिन इसी जाम में हो सकता है कोई मरीज हो, कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, कोई किसी का बहुत इंपॉर्टेंट काम हो। तो आप सभी से अनुरोध है, मैं खुद उपस्थित हुआ हूँ और पहले भी लास्ट वीक 29 तारीख को भी हमने एडीसी महोदय के अध्यक्षता में एक बैठक कराई थी कि उसमें कैसे कैसे आप लोगों को राहत पहुंचानी है और कैसे सहयोग करना है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पर जो लैंड कंपनसेशन का पैसा है, एज पर रूल 10% जो उसका पैसा होता है वो जो अफेक्टेड श्रमिक होते हैं उनको दिया जाना है। वो पैसा डीसी के पास पड़ा हुआ है। तो अगर आप शो कर सकते हैं कि आप अफेक्टेड लोग हैं, जो कंपनसेशन हुआ है उसमें सर्किल ऑफिसर को शो करिए और उसका भी पैसा आपको ही दिया जाएगा। वो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये एक तो बात है ही। और उसके बाद 5 तारीख को एक कोर्ट का ये भी आदेश किया था कोर्ट के बगान को कि वो पीएफ में 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करना है, और उन्होंने नहीं किया, या क्या उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा उसका सुनवाई मंडे को होने वाला है। तो इस सब का प्रक्रिया चल रहा है। थोड़ा अदालत का भी उसमें दखल है। हमारे ये जो ओनर है कलकत्ता में है, तो यहाँ पे लोकल लोगों के पास आप लोगों का समस्या सॉल्व करने के लिए सारा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब, मंत्री जी ने भी फोन किया, लेबर मिनिस्टर साहब ने भी फोन किया, उसके बाद लेबर कमिश्नर ने भी फोन किया कि जाके उन लोगों का हालचाल जानो और उसको सुलझाने का पूरा प्रयास करिए। तो हम आपके साथ हैं, आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं आप लोग बताइए। लेकिन सवेरे से अभी तक 8-10 घंटे हो गए हैं। आप लोग भी अपने घर जाइए, खाना खाइए और ये हम लोग का रास्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत असुविधा हो रही है। हम लोगों को किसी कारणवश हमने 163 या 144 यूज नहीं किया है, लेकिन हम लोग को आप मत करिए कि ऐसा नहीं करना पड़े। और हम आशा करते हैं कि ये समस्या जो है ये 1 साल से चल रही है, लेकिन हर बार हमने आपको सॉल्व करके दिया है। पहले लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम हुई थी, इसके पहले भी कुछ इश्यूज हुए थे। तो प्रॉब्लम हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। और प्रोविडेंट फंड की तरफ से भी हमको भरोसा है कि अगर कोर्ट से उनको मंडे को एक पॉजिटिव जजमेंट मिलता है तो हम लोग और किसी तरीके से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यही मैं अभी तक रखना चाहता हूं। और मैं एसपी साहब से भी अनुरोध करूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग क्या इश्यूज हो रहे हैं और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में। डीसी साहब ने जो चीजें बताया है ये सही बात बताया है। जो भी है आईन श्रृंखला के मुताबिक ही होगा। और डीसी साहब ने पूरा बोला है कि आप लोगों का जो मिलना है वो मिलेगा। और एक चीज है कि आप लोगों को 2 पैसा ज्यादा मिले तो हमको ज्यादा खुश होगा। अभी जो पैसा जमीन के लेके जो पैसा है डीसी साहब के साथ पड़ा हुआ है, डीसी साहब ये भी बोल रहा है वो आप लोगों को पैसा नहीं देगा, वो पैसा रोक लेगा डीसी साहब। तो आप लोग चिंता मत करिए, हम आप लोग को किया है। डीसी सर, मैं एसएसपी हूँ, डीसी सर है, हम लोग आपको लिए हैं और आप लोगों के जितना भी हो सकता है हम उसको करेंगे। और ये हमारा ऐसे नहीं है कि हम ऐसे खड़े होकर बोले, हम ये पूरा हमारा आश्वासन है, पूरा वादा है हमारे प्रशासन की तरफ से। आज देखिए ये जो बगान है, ये प्राइवेट बगान है, इनका जो भी करना है डीसी सर ने मालिक से 2-3 बार बात किया है अभी, और उसका जो भी देना है जो होगा आज से शुरू हो रहा है, शाम से शुरू हो रहा है। और इससे आप ऐसा मत करिए कि बाकी लोगों का कोई ज्यादा परेशानी हो। हम आप लोग हर तरफ से जो कर, आपने बोला कि डीसी साहब आना है, आ गया, हम एसपी साहब, हम एसपी भी आ गए आप लोगों के साथ। और आप कभी भी मत समझे कि हम आप लोगों को मतलब कोई गुमराह करने के लिए कोशिश करें। हम लोग को यही है कि जो भी आपको प्राप्त है, जो भी मिलना है वो पूरी तरह मिले। इसमें हमारा कोई उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी के साथ नहीं है। आप बोलेंगे कुछ भी नहीं होता है, उसको मालिक को पकड़ कर जेल में डालना है, हम डाल देंगे। ये हमारा आपको वादा है। हम किसी के लिए हम काम नहीं करते, हम आप लोगों के लिए, हम प्रशासन के लिए, हम लोगों को भलाई के लिए हम काम करते हैं। इसलिए आप पूरे डीसी साहब आश्वासन दे रहे हैं, जो चीजें बात बताए हैं वो चीजें आप मान के चलिए। और हम यूनिफॉर्म पहन के हैं, डीसी साहब है, हम कभी आपके पास खड़ा होकर झूठ बात नहीं बोलते हैं। आज जितना हमने के माई बहन सभा है तो कखनो नहीं भाबा कि प्रशासन हमने के बेले के खातिर काम करे, तोनी के खातिर हमने खड़ा ही और तोनी के खातिर हमने खड़ा रहेगी। उसने तोनी के सबसे हमके अनुरोध है जे तोनी जितना भी मानुष के अपन हमने के बहुत टाइम हो गए, रोड ब्लॉक 10 घंटा हो गए, तोनी सबके हमके अनुरोध है जो सबसे हमने आपके बात तोनी के बात सुन लिया, हमने के बात हमने बता ली। और जी एक बार लगे ओगला हमने करबो कि तोनी थोड़ा रास्ता था हमने के खाली कर देबा, मन के लगे आना जाना सुविधा कर देबा। एटा तोनी के अनुरोध है। और हमने आज बोल के जाते एटा न है, तोनी के हमने जितना रिप्रेजेंटेटिव है सब हमने सामने आए, वो सब हमने आके हमके बोले करे लगे एटा तो हमने बोल के गले एटा काम नहीं करला, काहे हमने तोनी हमने के सब के आश्वासन है, पूरा आश्वासन है हमने तोनी के खातिर आई और तोनी के भाल खातिर काम करो। खाली एटा अनुरोध है এখন যে রাস্তাটা এখন খালি করতে বলা। ধন্যবাদ। हाँ
আপনারা যারা আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি যে ডিসি স্যার যে কথাটা বলেছে যে ওই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে পালন হবে, ঠিক আছে। আর আরেকটা কথা, এই বাগান মালিক যে আছে যে ও পিয়াতে টাকা দিতে নাই পারে, বাগানে যে রাস্তা গেছে না, রাস্তা মহাসড়ক ভারতমালা, ওই টাকাটা ডিসি স্যারের এখানে আছে। দরকার পড়লে ওই টাকা থেকে আপনাদেরকে যে বকেয়া হতে আছে ওইগুলো দেওয়া হবে। ডিসি স্যার বলেছে যে ডিসি স্যারের কাছে টাকা আছে, ওই জন্য ওইসব নিয়ে চিন্তা করতে নাই লাগবে। আরেকটা ব্যাপার আছে যে আগামী দিনের জন্য আপনারা আগামী শুক্রবার সাপ্তাহিক তলব একটা হবে, একটা সোমবার হবে, একটা শুক্রবার হবে, ঠিক আছে। আজকে ওষুধ হবে, আগামী সোমবারে একটা তলব, আগামী শুক্রবারে একটা তলব। যদি না হয় তাকে অতদিন আমার কষ্ট করলি আর দুদিন কষ্ট করে দিব। আমরা তারপরে এখন যখন আমাদের ডিসি স্যার আছে, আমরা তখন নিয়ালাই করে কাহা করবো জানো, আমরা যদি আমরা শুক্রবারের ভিতরে আমাদের রেশন তরফ না পাই রাখো, তবে আমরা শনিবার দিন আবার অবরোধ করবো, রংপুর করবো, রংপুর। আর আমরা বলছি কি ডিসি স্যারকে যে আমাদের মালিককে যাতে আমাদের এই বাগানের যেটা সঞ্জীব তুলসিয়ান ইনি যাতে আমাদের আর না থাকে, অন্য কোম্পানি নিয়ে রাখে, এটা আমাদের অনুরোধ, আর কিছু লাগে না, ঠিক আছে। এই মালিক থাকে না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হয়ে গেছে। তো এখন আমরা ডিসি স্যারের কোথায় আমরা আজকে এই যে ধর্নাটা এটা আমরা বন্ধ করছি, আমরা সব জায়গায় ঘুরে যাবো, চলো, আর রাস্তা খোলা হবে এখন। মালের বন্ধুটা শুনছি আর বাগানে কোথাও পান সাথে সাথে आप लोग अंदर हो जाओ। अभी और देखने के बाद देसी आ गया, अभी शेष क्या बोल रहे हैं। And they are all PCM.
already have some experience, and that you won't like it. How do you take any kind of, views or any kind of liberalization? The PP is not representative. Representing the government case in তো আমাদের মধ্যে যারা আছে ডিসি এর ডিসি কত কিছু বাদ দিতে তো আমাদের ডিস্ট্রিক্টের সব হেড कुछ माहे कभी अनाउंस करे बोले दिले सब दिन मायके बोलले की सब काही इनके डीसी से बारे को ये नहीं कर भी तो मेन गार्जियन वे এখন मारे को नहीं है हां मामू ठीक है दूसरा तो यहाँ तो सर्च करना कर लो आगे मार से धोखा दिया है लेबर पुलिस ना है लेबर पुलिस ना है तो सब আছে से আমি যাচ্ছি না আই যাবে পিটারে
তো দেখতে পারো আপনারা কাছারের আমরা ডেপুটি কমিশনার মহাশয় আইছেন তাই নিয়ে এখন কিতাব হইন চা বাগানের শ্রমিকের দাবি যে তারা বোনাস না স্যালারি পান না প্রপারলি টাইমে। माइक